Okay, good morning students. This video is all about NCERT class 10th arithmetic progressions chapter 5 exercise 5.2 solutions. In the previous class we have completed the exercise 5.2 introduction and this video is about exercise 5.2 solutions. So let us see the first question of this exercise is fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and an is the nth term दिया है. So इस टेबल में हमें fill in the blanks करना है. Okay, so very simple question. Let us see the first solution. So the first term A is given 7 and the common difference D is given and n is given 8. We have to find an will be equal to how much? Yani here A is given, D is given and n also given. Now we have to find the an, means nth term of NAP. We all know that nth term of NAP formula is A plus n minus 1 into D. So let us apply these values. A is what? 7 plus n is already given 8 minus 1 and the common difference D also given 3. So next 7 plus 8 minus 1 7 into 3. Next 7 plus 7 3s are 21. So 7 plus 21 is 28. So this is the an value for the first question. Okay, now let us see the second sub question. What is given here? A is given minus 18. D is, we have to find D will be equal to how much? And n is given 10 and an is given 0. Okay, using a, n and an we have to find the D. Very simple. Again an value is given, so we can use the nth term of NAP formula, that is a plus n minus 1 into D. So here an is already given, how much? 0 will be equal to a is given minus 18 plus n is given 10 minus 1 into D. Now here is minus 18, this side bringing so plus 18. 18 will be equal to 10 minus 1 is 9 and D. Here 9 is multiplying, this side bringing so divide. So 18 by 9 will be equal to D. So 9 ones are 9, 9 twos are 18. So here the D will be 2. Okay. Now we will go for the fourth question. Fourth sub question. The fourth sub question is that A is given minus 18.9, D is given 2.5 and n we have to find and an is given 3.6. Okay, here again the first term is given, common difference is given and nth term of NAP given. Now we have to find the value of n. Very simple. Here nth term is given, so we can use the nth term of NAP formula, that is an. An formula is a plus n minus 1 into D. So apply the values here. An is how much given? 3.6 equal to a is given minus 18.9 plus n we have to find. So as it is written minus 1 and common difference is given 2.5. Now here minus 18.9 is there, this side bringing to it becomes positive. So 3.6 plus 18.9 will be equal to n minus 1 into 2.5. Now 6 plus 9 is 15, carry will be 1 plus 8 9 and 9 plus 3 is 12. Here point will be as it is. Okay, carry 1 plus 8 is 9, 9 plus 3 is 12. 12 means 2, carry 1 plus 1 is 2 will be equal to n minus 1 into 2.5. Now here 2.5 is multiplying, this side bringing so divide. So 22.5 upon 2.5 so will be equal to n minus 1. Here both the numerator and denominator having the same decimal places, means same number of decimal places, so we can directly remove the decimal places. So we will get answer 225 upon 25 will be equal to n minus 1. So now here we can cancel 25 ones are 25, 25 nines are 225. So here is 9 and here is minus 1, this side bringing so plus 1 will be equal to n. So 9 plus 1 is 10. So the value of n is 10. Okay, and here first is completed, second is completed, fourth. So now third and fifth one is do yourself, DYS. I hope you all understood the first question. So please pause the video to write down.
Okay students, now the second question is that choose the correct choice in the following and justify. Means now here two MCQ questions are there and out of 4 options we have to choose the correct option. Okay, though in the second bit the first sub question is that 30th term of the AP is 10 7 4 is. यहाँ पे हमारे पास एक AP दिया है, वो AP है 10 4 7 4 एंड सो ऑन. सो इस AP में हमें 30th टर्म निकालना है, यानी A30 निकालना है. ओके, सो वेरी सिंपल है. AP दिया है हमारे पास 10 7 4 एंड सो ऑन. सो 30th टर्म निकालना है. सो फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म कितना है 10, बाद में कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 - A1, दैट इज the difference between any two consecutive numbers which will give us the common difference, that is the D. So A2 - A1 means 7 - 10, so answer is -3. अभी हमें कौन सा टर्म निकालना है, A30 निकालना है. So A30 को हम कैसे लिखते हैं, आप सभी को मालूम है, A + 29D. सो यहाँ पे हम A और D का वैल्यू पुट करेंगे. सो आपने मिलेगा A30 का वैल्यू. फिर बाद में हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है. ओके, सो A, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इज 10 + 29D, what is the D is -3. Next 10, now plus into minus 3 9s are 27, so 7 and 2 will be the carry, 3 2s are 6, 6 plus 2 is 8. So now 10 minus 87 means from 87 10 gone, so we have the 77 and put the sign of bigger number, that is the minus. So A30 value we got here how much, -77. Let us see here which option is correct. The correct option is C. Therefore, we can say that correct option is C, that is -77. Next, the second question here. 11th term of the AP -3 -1/2 and so on. फिर से यहाँ पे एक AP दिया है और हमें पूछ रहा है कि उसमें का 11th टर्म निकालना है, यानी 11वां टर्म. ओके, सो सिमिलर क्वेश्चन ओनली है. चलो लिखते हैं हम AP -3 -1/2 2 and so on. Let me see the one's question, it is correct or wrong. Okay, it is correct. Now so A, what is the A first term is -3. Now the common difference, that is A2 - A1. So A2 is what, -1/2 minus of A1, that is -3. So what will get here, -1/2 minus into minus plus 3. So now let us simplify. What will get, -1 plus 6 upon 2. So we will get here 5/2. The common difference is 5/2. Now we have to find the 11th term. A11 will be equal to how much? And we know that 11th term, see here, 30th term we can write as a A + 29D. So 11th term we can write as a A + 10D. So now apply the value of A and D. So what will get A? What is A here? -3 plus 10 times D. What is the D here? 5/2. Next -3 plus 2 1s are 2, 2 5s are 10. So 5 5s are 25. So from 25 3 gone. So we are having 22. So the A11 value means 11th term of this AP is how much we got, 22. So which option is correct here? B option is correct. Therefore correct option is B. Okay, so this is the second solution. I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay, this is the third question, that is in the following APs find the missing terms of the boxes. So यहाँ पे APs दिया है और हमें पूछ रहा है कि वो मिसिंग टर्म्स को हमें फाइंड करना है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 दिया है, फिर बॉक्स दिया है, फिर 26 दिया है और हमें बीच में वाला टर्म निकालना है. सो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है A1 एज अ 2. A1 लिखो या तो A, दोनों भी सेम ही रिप्रेजेंट करते हैं. और वैसे भी क्या, ये थर्ड टर्म यानी A3 दिया है हमारे पास. A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A3 is 26 दिया है. A3 को हम वी कैन राइट एज A + 2D will be equal to 26. सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. A वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस 2D will be equal to 26 है. यहाँ पे प्लस 2 है, उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा. सो 2D will be equal to 26 - 2. सो 2D will be equal to 26 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 24. सो D will be equal to, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेजने से डिवाइड करेगा. सो 24/2. सो D का वैल्यू निकल के आ गया 12.
Now we have to find the second term a2. So we have to find the a2. So a2 को हम कैसे निकाल सकते हैं? a plus d लिख सकते हैं. So a कितना दिया हमारे पास ऑलरेडी 2 है, प्लस d कितना निकल के आ गया 12. So ये हो गया 12 plus 2 is 14. So हमारा fill in the blanks यानी ये जो बॉक्स वाला टर्म है वो कितना हो गया हमारा 14. So अभी नेक्स्ट वाला शुरू करते हैं, हम थर्ड वाला लेते हैं. थर्ड वाला दिया है 5 बॉक्स 9 1/2 दिया है. सो फर्स्ट टर्म ए दिया है 5, ए लिखो या तो a1, एंड द फोर्थ टर्म दिया है दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज a4. a1 दिया, a4 दिया, हमें फाइंड करना पड़ेगा a2 और a3. सो a4 इज गिवन एज अ 9 1/2. सो a4 को हम कैसे लिख सकते हैं? a plus 3d will be is equal to 9 1/2. नेक्स्ट a कितना दिया हमारे पास 5 plus 3d will be equal to, this is a mixed fraction, so we will convert into the okay, this 9 1/2 we can write as a 9.5 also. So here plus 5, that side sending so minus 5, so we will get here 3d will be is equal to 9.5 minus 5. so 3d will be is equal to 9.5 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा 4.5. so यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा, उधर बचेंगे तो डिवाइड हो जाएगा. सो d will be is equal to 4.5 upon 3. so d will be is equal to 4 3 1 जा 3, point will be as it is, and 3 5 जा how much 15. so d का वैल्यू निकल के आ गया 1.5. so अभी हमें निकालना सेकंड टर्म a2. so a2 को हम कैसे लिख सकते हैं? a plus d. so a कितना है हमारे पास ऑलरेडी दिया है 5 प्लस d अभी हमें मिला है 1.5. so 1.5 प्लस 5 कितना होता है 6.5. ये हो गया हमारा सेकंड टर्म a2. और वैसे हमें a3 निकालना है. so a3 को हम कैसे लिख सकते हैं? a plus 2d. so a कितना दिया हमारे पास 5 प्लस 2 into d कितना मिला हमारे पास 1.5. so ये हो गया 5 प्लस 1.5, 2 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8. ये हो गया थर्ड टर्म a3 एज अ 8, एंड a2 हमारे पास आया है 6.5. ये हो गया हमारे दोनों मिसिंग टर्म्स. अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन दिया है -4 बॉक्स 6. देखो a1 दिया है, a2 हमें फाइंड करना है, a3 भी हमें फाइंड करना है, a4 भी हमें फाइंड करना है, a5 भी हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे हमारे पास a6 दिया है. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है. सो फर्स्ट a1 दिया है हमारे पास, a1 बोलो या तो a सेम ही है -4, और सिक्स्थ टर्म दिया है यानी a6 दिया है कितना हमारे पास 6. सो a6 को हम कैसे लिख सकते हैं? यानी सिक्स्थ टर्म को a plus 5d will be equal to 6. सो a कितना दिया हमारे पास -4 plus 5d will be equal to 6. यहाँ पे -4 है, उधर भेजने से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. सो 5d will be equal to 6 plus 4. सो 5d will be equal to 10. यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर रहा, उधर भेजने से डिवाइड करेगा. सो d will be equal to 10/5. सो d का वैल्यू निकल के आ गया 2. अभी हमें क्या फाइंड करना है? सेकंड टर्म a2. यहाँ पे सॉल्व करेंगे, a2 फाइंड करना है. a2 कैसे लिखेंगे सेकंड टर्म को? a plus d. सो a कितना दिया हमारे पास -4 प्लस d कितना निकल के आ गया 2. सो ये हो गया -2. नेक्स्ट a3 निकालना है. सो a3 को यानी थर्ड टर्म ऑफ ab हम कैसे लिख सकते हैं? a plus 2d. सो a कितना है हमारे पास -4 प्लस 2 into d कितना है हमारे पास 2. सो ये हो गया -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 0. नेक्स्ट हमें a4 निकालना है. सो फोर्थ टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? a plus 3d. सो a है हमारे पास 4 प्लस 3 into d है हमारे पास 2. सो ये हो गया -4 प्लस 6. सो ये आंसर हो जाएगा 2. यानी फोर्थ टर्म हो गया हमारा 2. अभी वही लास्ट निकालना है फिफ्थ टर्म a5. सो फिफ्थ टर्म हम लिख सकते हैं a plus 4d. सो ये हमारे पास -4 है प्लस 4 into d है हमारे पास 2. सो -4 प्लस 8. सो ये हो गया आंसर 5. सो these are the missing terms of this given AP. So we have completed here first question, third question, and fourth question. So here 2 and 5th is remaining. So second and 5th, these both are do yourself. DYS. I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down.
Okay, this is the fourth question. Which term of the AP 3, 8, 13, 7, 18 is 78? इस AP का ऐसा कौन सा टर्म है उसका वैल्यू 78 है. Okay, so let us see that. AP is given 3, 8, 13, 18 and so on. ऐसा कौन सा टर्म है उसका वैल्यू 78 है. चलो अभी निकालते हैं फर्स्ट टर्म a एज 3 और कॉमन डिफरेंस हो गया a2 माइनस a1, सो दैट इज 8 माइनस 3 यानी 5. सो अभी वो कौन सा टर्म है हमें मालूम नहीं है, सो हम अज्यूम करेंगे लेट nth टर्म b 78. सो हमारा an हो जाएगा 78 एंड वी नो दैट द an फार्मूला दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इज इक्वल टू 78. सो अब इसको सॉल्व करते हैं. a कितना दिया हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, क्योंकि ये n का ही वैल्यू निकालना है हमें. d कितना दिया हमारे पास 5 will be is equal to 78. Here plus 3, that side sending so minus 3. n minus 1 into 5 will be is equal to 78 plus 3 इधर आके minus 3 हो जाएगा. So n minus 1 into 5 will be is equal to 78 में से 3 चला गया तो ये बचेगा हमारे पास 75. So यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेजने से डिवाइड करेगा. So n minus 1 will be is equal to 75 by 5. So यहाँ पे हमारे पास लेके आएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 यानी 15 निकल के आ गया. सो ये माइनस 1 उधर भेजने से प्लस 1 हो जाएगा, 15 प्लस 1, सो ये हो गया 16. सो ऐसा कौन सा टर्म है उसका वैल्यू 78 है, 16th टर्म. सो देयरफॉर 16th टर्म of the given AP will be 78. ओके ऐसा कौन सा टर्म था उसका वैल्यू 78 है, तो वही टर्म है 16th टर्म है उसका वैल्यू है 78. सो दिस इज द आंसर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द फिफ्थ. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी. यहाँ पे हमारे पास 2 एपी दिए हैं, उसमें पूरे कितने टर्म्स है वो हमें निकालना है. ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. 7, 13, 19, 205 ये एपी दिया है और इसमें ऐसे है यहां से तो यहां तक पूरे कितने टर्म्स है इसके बीच में वो हमें निकालना है. सो ए कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा 7, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, सो दैट इज 13 माइनस 7. सो 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6. और लास्ट टर्म दिया यानी nth टर्म ये हमारे पास दे रखा है 205 और हमें मालूम है कि nth टर्म ऑफ एन एपी फार्मूला दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसका वैल्यू दिया है 205. अब इसमें a और d वैल्यू पुट करके हमें n वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है. चलो a वैल्यू कितना दिया है 7 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, d कितना दिया हमारे पास 6 विल बी इक्वल टू 205. यहाँ पे प्लस 7 है, उधर भेजने से कितना हो जाएगा माइनस. सो n माइनस 1 इंटू 6 विल बी इज इक्वल टू 205. इधर का प्लस 7 इधर आके माइनस हो जाएगा. सो n माइनस 1 इंटू 6 विल बी इज इक्वल टू 15. 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा 8. यहाँ पे कितना बचेगा 9 और यहाँ पे कितना बचेगा 1 क्योंकि हमने एक बोरो लिया है. सो यहाँ पे 6 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर भेजेंगे सो डिवाइड. सो n माइनस 1 विल बी इज इक्वल टू 198 अपॉन 6. अब इसको 6 टेबल में कैंसिल करेंगे. 6 1 जा 6, 6 3 जा 18. सो 19 में से 18 चला गया. सो कितना बचेगा 1 इंटू 1 8 अगेन 18, फिर से 6 3 जा 18. सो यानी 33. यहाँ पे माइनस 1 उधर भेजने से कितना हो जाएगा प्लस 1. सो n विल बी इज इक्वल टू 33 प्लस 1. सो n हो गया हमारा 33 प्लस 1 यानी 34. सो इस फर्स्ट एपी में कितने टर्म्स है 44 है. ओके सो सिमिलरली ये सेकंड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना है. सो दिस सेकंड क्वेश्चन इज डू योरसेल्फ DYS. Okay, I hope you understood very well. So please pause the video to note it down. Okay students, now the next question is that is sixth. Check whether minus 150 is a term of this AP or not. हमें चेक करना है इस AP का कोई टर्म है क्या, उसका वैल्यू minus 150 है. सो अभी चेक करते हैं, बहुत आसान है. सो AP हमारे पास दे रखा है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन. इस AP का ऐसा कौन सा टर्म है उसका वैल्यू minus 150 है.
ओके चलो हम a का वैल्यू निकालते 11 और d का वैल्यू निकालते a2 माइनस a1 दैट इज 8 माइनस 11 यानी -3। सो वो कौन सा टर्म है हमें मालूम नहीं है ना, सो मानेंगे इसी को दिस इज ओनली आवर nth टर्म। सो जब हम सॉल्व करेंगे सो जो भी n का वैल्यू आ जाएगा वो हमें एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू देगा। वो फ्रैक्शनल कभी नहीं हो सकता और डेसिमल में भी नहीं हो सकता है। सो अगर वो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर देता है तो तब हम जाके बोल सकते हैं यस दिस इज द टर्म ऑफ दिस एपी। वो कौन सा टर्म है वो भी हम बता सकते हैं, 10वां है, 15 है, 20 है। ओके चलो अभी लेट nth टर्म बी -150। सो अगर ये nth टर्म हो गया तो हम कैसे लिख सकते हैं an will be is equal to -150। सो an फार्मूला हम सभी को मालूम है, सो दैट इज a plus n minus 1 into d will be is equal to -150। इसमें a और d का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें n का वैल्यू निकालेगा। सो a कितना दिया है 11 प्लस n minus 1, d कितना है -3 will be is equal to -150। यहाँ पे प्लस 11 है उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, n minus 1 into -3 will be is equal to -150 और यहाँ पे प्लस 11 इधर आके -11 हो जाएगा। सो n minus 1 into -3 will be is equal to ये हो जाएगा -161। सो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई कर रहा उधर भेजेंगे सो डिवाइड हो जाएगा। सो n minus 1 will be is equal to -160 अपॉन 161 अपॉन -3। सो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो ये तो 161 3 के टेबल में नहीं जाता तो हम ऐसे ही रखेंगे। सो यहाँ पे -1 है उधर भेजने से क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। सो n will be is equal to 161/3 + 1। अब इसको है ना सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा n will be is equal to डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा 161 प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा। सो n का वैल्यू निकल के आ जाएगा 164/3। सो ये कौन सा है फ्रैक्शनल वैल्यू है। सो ये n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, वो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर देगा। हम बोल सकते हैं कि हियर n कैन नॉट बी फ्रैक्शन। सो ये जो n है नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन हो सकते हैं क्या नो। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो -150 है इसका टर्म हो सकता है क्या नो। सो वी कैन से दैट देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। सो ये हो गया फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay student, the next question that is the 7th. Find the 31st term of the AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। यहाँ पे हमारे पास 11th term और 16th term दिया है। ये दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें 31st term निकालना है। ओके बहुत आसान है, देखो सॉल्यूशन। 11th टर्म दिया यानी A11 कितना दिया है 38। 11th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं a plus 10d will be is equal to 38। सो इसको मानेंगे हम इक्वेशन 1। और वैसे हमारे पास दूसरा क्या दिया 16th टर्म दिया यानी A16 दिया कितना दिया है 73। देखो जब हम 11th टर्म को a plus 10d लिख सकते हैं सो 16th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं a plus 15d will be is equal to 73। इसको मानेंगे इक्वेशन 2। अभी यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए लाइक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो देखो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ a का वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर मैंने इस 1 को 2 में से निकालो या तो 2 को 1 में से निकालो सो a को हम डिलीट कर सकते हैं यानी d का वैल्यू मिलेगा। उस d को निकाल के फिर बाद में 1 में पुट करो या तो 2 में, सो फिर बाद में a का वैल्यू मिलेगा। सो ये दोनों वैल्यूज को हम किस में लगाएंगे 31st टर्म में, सो हमें उसका वैल्यू मिल जाएगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 यानी 1 को 2 में से निकाले तो 2 को फर्स्ट निकालना पड़ेगा और a plus 15d will be equal to 73। अभी फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर रहे तो नीचे लिखेंगे a plus 10d will be equal to 38। While subtracting one expression from the another equation, so every term sign will change, so minus minus minus, so प्लस है माइनस है 0 हो गया। 15d में से 10d चला गया तो कितना बचेगा 5d will be is equal to, हाँ यहाँ पे 73 में से 38 को माइनस करना है। 3 में से तो 8 नहीं जाएगा सो एक बार और लाएंगे। 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 5। यहाँ पे कितना बचेगा 6 में से 3 गया तो 3। सो d निकल के आ जाएगा 35/5। सो d हो जाएगा हमारा 7। सो ये 7 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास a plus
10d will be is equal to 38. So a plus 10 d कितने हमारे पास 7 will be is equal to 38. So a plus 7 10 जा 70 equal to 38. यहाँ पे प्लस 70 है, उधर भेजने से माइनस हो जाएगा. So a will be is equal to 38 minus 70. So a will be is equal to 70 में से 38 चला गया तो कितना बचेगा -32. सो a का वैल्यू हो गया -32 और d का वैल्यू हो गया 7. अभी हमें कौन सा टर्म निकालना है 31st. सो 31st टर्म a 31 कैसे लिख सकते हैं a plus 30d. सो इसमें पुट करेंगे वैल्यूज. a कितना मिला हमारे पास -32 प्लस 30d d वैल्यू कितना मिला है 7. सो ये हो गया -32 प्लस 37 जा 210 हो जाएगा. सो 210 में से अभी इसको माइनस करना है. सो 0 में से 2 गया जाता क्या 9. सो हम एक 12 लाएंगे. सो 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ पे कितना रहेगा 0. फिर 0 में से 3 निकलता है क्या 9. फिर से एक 12 लाएंगे तो ये 10 हो जाएगा. 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 1. सो ये हो गया 31st टर्म ऑफ द AP is 178. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल. सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Okay student, now the 8th question, that is an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. So find the 28th term. So ये भी सिमिलर क्वेश्चन है. यहाँ पे हमारे पास थर्ड टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है और हमें पूछ रहा है कि 29th टर्म निकालो. सो थर्ड टर्म दिया हमारे पास यानी a3 कितना दिया है 12. सो a3 को हम कैसे लिख सकते हैं यानी a plus 2d will be equal to 12. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. और वैसे क्या दिया लास्ट टर्म. बट यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया the AP consists of 50 terms. so last term कौन सा हो गया 50th term यानी a 50 दे दिया हमारे पास कितना 106. so 50th term को हम कैसे लिख सकते हैं a plus 49d will be equal to 106. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. फिर से सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. so अभी हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 from 2. 1 को 2 में से निकालेंगे. so a plus 49d will be equal to 106. so a plus 2d will be equal to 12. so माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे थे यहाँ पे टर्म्स साइन चेंज हो जाएगा. प्लस a माइनस a 0 हो जाएगा. 49d में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 47d will be equal to 6 में से 2 गया तो 4. अभी 10 में से 1 गया तो 9. so next d will be equal to 94 upon 47. so ये हो जाएगा 47 1 जा 47 47 2 जा 94. so d का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास 2. so इस d का वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. पुट d will be equal to 2 in equation 1. इक्वेशन 1 क्या दे रखा हमारे पास a plus 2d will be equal to 12. so a plus 2 into d वैल्यू कितना मिला है 2 will be equal to 12. so a plus 2 2 जा 4 will be equal to 12. so a will be equal to 12. यहाँ पे प्लस 4 है उधर भेजने से -4 हो जाएगा. so a will be equal to 12 में से 4 गया तो हमारे पास 8 निकल के आ गया. अभी हमें कौन सा टर्म निकालना है 29. सो a 29 हम कैसे लिख सकते हैं a plus 28d. सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे. a कितना मिला हमारे पास 8 plus 28 into d वैल्यू कितना मिला हमारे पास 2. सो ये हो गया 8 plus 2 8 जा 16 कैरी 1 एंड 2 2 जा 4 4 प्लस 1 कैरी 5 यानी 28 2 जा 56 हो जाएगा. 56 प्लस 84 सॉरी 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64. ये हो गया हमारा 29th टर्म ऑफ द AP is 64. I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay student, this is the 9th question. So if the third and 9th term of an AP are given 4 and -8 respectively, so हमें फाइंड करना है which term of this AP is 0. ओके हमारे पास थर्ड और 9th टर्म दिया है और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें फाइंड करना है इस AP का ऐसा कौन सा टर्म है उसका वैल्यू 0 है. ओके चलो अभी सॉल्व करते हैं. थर्ड टर्म दिया यानी a3 कितना दिया है 4 एंड 9th टर्म दिया यानी a9 -8. थर्ड टर्म को हम कैसे लिखेंगे a plus 2d will be equal to 4. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और 9th टर्म को हम लिखेंगे a plus 8d will be equal to -8. ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. फिर से सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. सब्ट्रैक्ट 1 from 2. so a plus 8d will be equal to -8. a plus 2d will be equal to 4. so minus minus minus
प्लस ए माइनस ए 0, सो 8d में से 2d चला गया यानी 6d विल बी इज इक्वल टू -8 -4 कितना हो जाएगा -12, सो d हो जाएगा -12/6, सो d का वैल्यू निकल के आ गया -2। ओके नेक्स्ट, अभी हमें a का वैल्यू निकालना है। पुट d विल बी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 क्या है, a plus 2d will be is equal to 4, so a plus 2d, d कितना है -2 will be is equal to 4, so a plus into minus, minus 2 to the 4 will be is equal to 4, so a will be is equal to 4, इधर का -4 उधर जाके +4 बनेगा, so ये हो गया हमारा 8। सो इसको यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, एपी को डिटरमाइन करना है, उसके बाद उसका कौन सा टर्म होगा वो वैल्यू 0 हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, लेट nth टर्म बी 0, सो हमारा an कितना हो जाएगा 0। सो अब इसको सॉल्व करेंगे, an का फार्मूला तो हमें सभी को मालूम है, सो दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसका वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 0। सो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज ऑफ a और d, a कितना है हमारे पास 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास -2 will be equal to 0। यहाँ पे +8 उधर जाके -8 हो जाएगा, so n minus 1 into -2 will be is equal to -8, और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई कर रहा उधर जाके डिवाइड करेगा, so n minus 1 will be is equal to -8 upon -2, so minus minus cancel, 2 1 जा 2, 2 2 जा सॉरी 2 4 जा 8, यहाँ पे -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, so n will be is equal to 4 + 1 यानी ये हो गया 5। सो ऐसा कौन सा टर्म है उसका वैल्यू 0 है, फिफ्थ टर्म, सो देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। ऐसा कौन सा टर्म था उसका वैल्यू 0 है, फिफ्थ टर्म था उसका वैल्यू 0 है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, so this is the 10th question. The question is that the 17th term of the AP exceeds its 10th term by 7। ये जो 17th term है वो 10वां टर्म से 7 ज्यादा है, so find the common difference बोल रहा है। बहुत सिंपल है, देखो ये जो 17th टर्म है 10th टर्म्स में भी कितना ज्यादा है 7, so ये हो गया हमारा कंडीशन। सो इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये 17 को हम कैसे लिखेंगे, 17th टर्म यानी a प्लस 16d विल बी इक्वल टू 10th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 10d प्लस 7। सो यहाँ पे इस दोनों टर्म्स को यहाँ पे इधर लेके आएंगे, सो a प्लस 16d, इधर प्लस है इधर आने से माइनस है, यहाँ पे प्लस 10d इधर आने से माइनस 10d will be is equal to 7, so प्लस a माइनस a 0 हो जाएगा, 16d में से 10d चला गया तो हमारे पास कितना मिलेगा 6d will be is equal to 7, so यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर रहा उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, so हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया है 7/6। ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। Okay, so in this exercise totally we have the 20 questions. So in this video we have completed only 10 questions. The remaining 10 questions we will see in the next video. Till then, bye bye.